बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को लगता है कि अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलनी आती है. टू बी ऑनेस्ट, if you spend time studying instead of thinking all this nonsense, will be very difficult questions. वो बनाते ही इस mindset से हैं कि वो उन questions को कोई कर ना पाए. I live in the DU hostel and I have seen people who are very negative. They'll just try to pull you down every time. Result खुल ही नहीं रहा था. मुझे लगा कि सच में ये गलत हो. Thank you so much. विनीत से मेरा जो छोटा सा इंट्रैक्शन वो बताया था. He contacted me first time for MA entrance University of Delhi, and normally we don't take MA entrance classes for Delhi University, JNU, Jamia. Simple reason, because पढ़ाना हमें नेट ही पड़ेगा. Standard वही. DU, JNU, Jamia has same net standard. I just asked that अगर तुम्हें पढ़ना है seriously, तो go for that thing. बाकी तुम अपने आप देख लो. And हम लोग उसको follow ही नहीं करते कि नहीं हमें नहीं करना. उसके बाद क्या हुआ? You will tell. So this is Vineet. I am pursuing my masters in English literature from Ramjas College right now, and I contacted sir in 2020 when I was in my BA second year. That also my BA also I was doing from DU English Honours, and that time I wanted a bit of guidance because I was aiming I was aiming for JNU, Jamia or DU. So that time I did not know the sequence of studying things properly, because in DU we study very academically and very जो हम पढ़ते हैं वो बहुत scholarly शैली होती है पढ़ने की. So I wanted a bit of guidance. At first I tried doing everything on my own, but उसके बाद मुझे लगा if I get a guidance so that will be a better thing for me. So then I joined his online batch, and which actually helped me a lot for clearing all the entrances. So I secured decent ranks in all the exams, and now I'm in my third semester. I set for this NET exam with a to be very honest, with a very little bit of preparation, because I was not very good with maths and DI, which is in paper 1. So for paper 1 I actually studied, and अभी जो सर ने इंटरव्यू लिया था उसी में I said that sir, I was confident in paper 2. Then he asked me, how did you gain that confidence? So of course अभी पढ़ने से पहले there was a lot of experience I gained, because during the time of corona and pandemic I was at my home for 2 years, and those 2 years I actually utilized it very nicely with the 12 hours or 13 hours of study each and every day. अगर आप इतना भी 12 घंटे, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर इतना भी एक दिन में नहीं हो पा रहे तो just make sure you are doing it for 2 hours or 3 hours and make it count, because these things actually help you. And I'm open for the questions. If any of you have any question, I can help you with that, and I think I'll be able to do justice with your questions as well. Otherwise that's it from my side. Yes sir. When you were attempting the exam, did you feel the paper was unknown to you? No. अभी सर से मेरा ऑफिस में ही जब बात हुआ था, then I said in any competitive exam there is a proper sequence, or the examiner who sets the question paper, they have one thing very clear in their mind, that is 50% questions will be easy questions, 30% will be average questions, and that part will decide whether you are going to pass this exam or you are going to fail. And the rest 20% will be very difficult questions. वो बनाते ही इस mindset से हैं कि वो उन questions को कोई कर ना पाए, because NTA अगर सारे ही questions ऐसे दे देगा जो आप कर लेंगे तो competition बचेगा ही नहीं. So that's how they set the question paper. और आप लोगों को प्रिपेयर करते टाइम भी अपना माइंड उसी तरफ फोकस रखना है कि जो 50% क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी होने वाले हैं उनको आप ठीक से कर लें, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी डामाडोल होता है तो बहुत मुश्किल है इस एग्जाम को क्लियर करना. बिकॉज आई पर्सनली फील, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जाम बहुत ईजी है, मैं बस इतना बोल रही हूँ, यू जस्ट नीड अ गुड स्ट्रैटेजी. And most of the time we spend thinking, oh my god, whether I'm going to pass this exam, whether am I going to fail this exam. But to be honest, if you spend time studying instead of thinking all this nonsense, then you are ultimately going to gain your goal. Alright,
सो परेशान होके या कंफ्यूज होके 1000 लोगों से पूछना भी नहीं है कि ओ माय गॉड मैं कैसे करूं गाइस यू आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर समडे एंड वी ऑल आर गोइंग टू वर्क इन सम बिग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सो क्या आप वहां पे भी जाके सबसे यही पूछेंगे मैं कैसे करूं यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी I knew that my weakness is maths and DI so I worked on it because English के लिए तो मैंने ऑलरेडी 2 साल दिए थे तो वो तो मेरे को हेल्प करेंगे तो I just knew what my strength is, I knew what my weakness is. So just know that and make your own strategy. Don't ask me कि आपने कैसे किया था. अरे मैंने जैसे किया था जैसे मुझे करना था. आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों की वीकनेस क्या है. बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को लगता है कि अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी करने जा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोलनी आती है. तो अगर किसी और को आती है, व्हाई आर यू गोइंग टू आस्क देम? उनको तो आती है ना. दे डोंट नो योर हर्डल्स. आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद देखिए कि आपको कौन हेल्प कर सकता है. डोंट आस्क एवरीवन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, as I said, I live in the DU hostel and I have seen people who are very negative. They'll just try to pull you down every time. Be aware of them. And very important thing, if you are one of those, then always remember that God always checks your intentions. कि आप कमरा बंद करके चुपचाप पढ़ेंगे, किसी को बताएंगे नहीं या ऐसा करेंगे, these things are not going to help you in long run. हो सकता है आप ये एग्जाम निकाल लें, लेकिन बाद में आप लिटरेचर में हैं, आप बहुत बड़ी फील्ड में हैं. दिस इज वेरी वास्ट एरिया. एंड हाउ वी क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स is like we discuss things, and when we discuss we take out even more better arguments. And what we want in literature, we want good arguments, good perspectives. And as a student of literature, what we learn to be sensitive, to be kind to each other, and that's how we are going to make this earth beautiful, right? You were prepared to a level of JRF, you missed it by 1%. Yes. And she told me that, like I asked her, your first 5 minutes is check the results. Tell them. Actually, when I opened the, क्योंकि वो आप सबको पता है सर्वर डाउन हो गया था, रिजल्ट खुल ही नहीं रहा था. I was in the market एंड मैंने फटाफट रिक्शा करके मैं हॉस्टल पहुंची कि मुझे जल्दी जाना है. फिर तब भी रिजल्ट नहीं खुल रहा था. आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड. फिर जब मेरा रिजल्ट खुला, आई जस्ट सॉ इन माई रिजल्ट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ओनली. देयर वाज नो जीआरएफ. आई वॉज विद माई सीनियर हु इज डूइंग अ पीएचडी इन ज्योग्राफी. आई वॉज विद हर एंड फॉर अ मोमेंट आई वॉज डिसहार्टेंड. माई आईज वो फिल्ड. ओ माई गॉड. एंड परसेंटाइल का भी बहुत छोटा सा फर्क था. फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे लगा कि सच में ये गलत हो गया. बट उसके बाद when I talk to my classmates, even very brilliant students जिनको मैं अपना कंपटीशन मानती हूँ या जिनसे मैं रोज सीखती हूँ रोजमर्रा के जीवन में, उनका भी नेट नहीं हुआ था. तो I felt that this time competition was high. and अगर इस बैच में से किसी ने कोई क्लियर नहीं कर पाया, please don't be disheartened. आप ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रह गए हैं. एंड द पीपल हु हैव क्लियर्ड इट, आई एम रियली ग्लैड दैट आई क्लियर्ड इट, शी क्लियर्ड इट, एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड इट. इट्स अ लाइक गॉड, वी आर ब्लेस्ड एंड गॉड हैज हेल्प्ड अस. सो डोंट बी डिसहार्टेंड एंड वापस से कमर कस लीजिए और दोबारा से जेआरएफ की तैयारी करिए. कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. ये इतना हंस रही थी ना इंटरव्यू को, मैंने कहा तो पहले हंस ले अच्छे से. Because and you know she is so genuine about her preparation. She said सर मेरा JRF नहीं, मैं किस मुंह से बात करूं? Because मेरे को यही लग रहा था मैं क्या बोलूंगी, मेरा JRF नहीं हो गया, आप लोग कर लीजिए. लेकिन ये उन लोगों को सिखाओ जो बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं. JRF ऐसे होता है, खुद नहीं कर रहे हैं. At least you know what, भी एक साल में एक बार एग्जाम हो रहा है. What did she do when she went through the classes and qualified those entrances? ये अपने मल्टीपल एंट्रेंसेस के बाद रामजस इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है. इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है रामजस. ऐसे आई जस्ट रिमेंबर वन मेमोरी रिलेटेड टू रामजस, नॉट एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर. देयर वाज वन वैकेंसी, 124 कैंडिडेट्स केम फॉर इंग्लिश लिटरेचर. 124 लोग आए थे. आई वाज देयर विद माय सम अदर एडॉक फ्रेंड्स एंड द मोमेंट आई सॉ द लेजेंड्स जिन्हें हम मानते थे, अरे ये तो सर है हमारे, वो लोग भी आए थे इंटरव्यू. तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स, चल कैंटीन चलते हैं, समोसे खा के निकलते हैं. हम क्या जाएंगे वहां पे? वो लोग आएंगे जिन 40-40 पेज के सीवी हैं, 40 पेजेस के रिज्यूमे हैं.
मेरा एक दोस्त वो जेएनयू से था, उसने इतने पेपर्स पब्लिश करके थे, अमेरिका, लंदन, कहाँ नहीं करके थे, वो आया हुआ था। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना। मैंने कहा जब ये आया है तब चलते ही हैं। रामजस के लिए सीट्स में आप देखना, और 100 आउट ऑफ 100 को एडमिशन नहीं मिलता है, आपको मल्टीपल ग्राउंड्स पे देखते हैं। शी हैज रीच्ड देयर एंड एक एंट्रेंस नहीं निकाला है, चामिया, आईपीयू, डीयू, अंबेडकर। शी केप्ट ऑन स्टडीइंग। इनसे मैंने पूछा इस बार नेट के लिए कुछ अलग से पढ़ा? शी सेड सर मैं तो बस वो बेसिक रिवीजन कर रही हूं। Yeah, for paper 2 I was revising my old notes only. As I said कि मैंने 2 साल जब इंग्लिश में दिए हैं तो वापस से मैं क्या दोबारा से नोट्स नहीं बनाऊंगी, बिकॉज अगर हम किसी भी बड़े एग्जाम के लिए टॉपर्स की टॉक देखते हैं वो लोग यही बोलते हैं, द वन थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इज योर रिपीटेड रिविजन्स and previous year question papers. Guys, previous year question papers is the key. I'm telling you, concepts are repeated, highly repeated. और सर के ऑडियो, मैं तो ऑनलाइन बैच में थी, तो सर के लेक्चर्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर कवर्ड वो वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं. सो इट इज़ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड. आपको अभी अगर आप नेट निकालना चाहते हैं तो स्कॉलर नहीं बनना है, हमको सिर्फ एग्जाम निकालना है. तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखिए. और मेरा तो ये प्रॉब्लम था कि एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गो बैक टू माय टेबल, स्टडी टेबल, आई यूज्ड टू टेक न्यू थिंग्स आउट बिकॉज रिविजन इज वेरी टायरिंग. आई फील स्लीपी व्हाइल रिवाइजिंग. एक ही चीज़ को कितनी बार पढूं यार, 4 साल हो गए हैं. सो मैं रोज़ एक नई चीज़ को उठाती थी. कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज होती हैं या बढ़िया रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये बहुत स्कॉलरली चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है. बट यहाँ पे हमको फिलोसफर नहीं बनना है, एग्ज़ाम निकालना है. और अगर एग्ज़ाम नहीं निकाला तो आप तो एडमिशन के क्राइटेरियाज में फेल कर जाएंगे. सो द मेन थिंग इज़ कि आप लोग एग्ज़ाम को बहुत आराम से निकालिए. इट्स नॉट वेरी टफ. आई प्रॉमिस, इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. आई प्रॉमिस यू. After the interview, she cutely asked me, "सर मैं एक बार ऑफलाइन क्लास अटेंड कर लूँ?" हाँ, तुम आराम से ऑफलाइन क्लास. बिकॉज मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है सर के यहाँ. और कुछ अपने तरफ से ये कर लेंगे. बस देखो गाइडेंस थिंग वो है, आपके पास भी है. उनको ऑनलाइन में उतना नहीं मिला जितना आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा. ये सच है कि ऑफलाइन अलग लेवल है. एक चीज जो सीखना वो ये है ना, शी केप्ट ऑन गोइंग. नेगेटिविटी है ही नहीं. उसको समझाओ तुमसे नहीं होगा, वो मानेगी. कहना तो यू कांट डू दैट. ये आपको अपने अंदर से भी हटना है. हो जाएगा यार, कर लेंगे. कर रहे हैं ना ये लोग. फर्स्ट अटेम्प्ट कर रही है. कितने परसेंट है? कहाँ तक पहुंचा आप? मेरा JRF 1% से रहा. बहुत परसेंट है. टोटल स्कोर कहाँ तक गया आपका? 95%. 95% है. कर ही रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट. And one more thing, 1 month before the exam, I met one senior. She is pursuing a PhD from DU, and I met her. She is JRF. She did her in a first attempt. जैसे अभी मैंने दिया है, इसी में JRF हो जाता. उनका सेकेंड सेमेस्टर में ही हो गया था. तो now she is doing her PhD. I asked her कि दीदी आपने क्या किया था for JRF in the first attempt? She said, Beneath, I just gave my 1 month. It might be surprising for all of us, but yes, that's the case. Just 1 month. And she just said one thing. मैंने बस क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए थे और कॉन्सेप्ट्स को देखा था और रिविजन्स एंड क्वेश्चन पेपर्स. सो आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं. 1 महीने तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरे को लगता है 10 दिन तो माहौल बनाने में निकल जाते हैं कि अब कौन सा राइटर है, अब कौन सा राइटर है. तो 1 महीने में अगर कोई कर रहा है तो फिर तो 6-7 महीने, इट्स अ वेरी बिग डील. और पेपर तो अभी पता नहीं मार्च में होना है कि जून में. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. If anybody wants to ask any questions, I'll entertain you well. दो क्वेश्चंस तुमने अच्छा खासा बता दिया सब. बाकी you're not far away. Delhi University भी हो, जो दोबारा बुला लेंगे. Say remember this thing, just be positive and पढ़ो. जो कर सकते हो सामने. आज भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, कल भी क्लास होगी, रोज की चीजें आपके पास होंगी. अगर आपको याद नहीं है, जैसे शी सेड कि मेरे बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनका एनालिटिकल स्किल बड़ा अच्छा हो, चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं, बट ऑन अदर ग्राउंड्स दे कुड नॉट रिकॉल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. इस बार क्रोनोलॉजी के बड़े क्वेश्चन थे, तो एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको साइड कर देगा.
इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट टॉपर है वो कर लेगा, या थ्रू आउट जो एवरेज है वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ अपने हाथ में एक ही चीज है, अपना बेस्ट एफर्ट। व्हाट शी सेड 50 क्वेश्चंस तो नॉर्मल है, आएंगे 30% वो होंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। दैट्स व्हाट आई से। रिमेंबर 15-16 क्वेश्चन बाहर से आएंगे तो मुझे भी नहीं आते, तो बोलता हूँ ना हर क्लास में, मेरा कंफर्मेशन क्या है कि ये 80 मुझे बहुत अच्छे से आता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ये होता है कि एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सब आपको इतना फिक्स कर दिया जाए माइंड में कि आपको आता हो। 20% वो जो रेफरेंसेस, एडवांस चीजें जो मैं बोलता हूँ घर जाके चेक करना, आपने चेक किया, 10 मिनट पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, दैट डिपेंड्स देयर। एटलीस्ट इतना कर जाओ, छोड़ दो 20 जो नहीं आते, छोड़ दो। और 20 में लक मैटर करेगा, नेगेटिव बात तो है नहीं। इस 80 में से 60 आ गया और 20 में से 5 भी सही लगे, हो गया कॉलेज। हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि यू विल क्लियर इट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच विनीत। And one more thing, don't give a place to any negativity. Just manifest that you are going to clear this exam. I know when I reached the exam center, my classmate, my own friend, he was saying, ओहो ये तो होने ही नहीं वाला है, यहाँ पे वो फलानी दीदी आई हैं, ये वाली दीदी आई हैं, उन्होंने ये किया है, वो किया है। I said, shut up. You are not going to clear it maybe, but that's not the case with me. And I was उस समय पे जब उसने ये सब बोला ना, I started shivering to be honest, कि ये क्या बोल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और ये सब पता नहीं क्यों आया मेरे माइंड में। एंड आई वॉज एक्चुअली दैट टाइम आई वॉज मैनिफेस्टिंग GRF इज कमिंग, आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम। वो जो रफ शीट मिलती है एग्जाम टाइम में, आई रोट दैट आई एम गोइंग टू पास दिस एग्जाम। जस्ट मैनिफेस्ट, don't be you know disheartened or don't give a place to any negativity. Do you have any question? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When you, I guess when you study na, you'll get the confidence. It comes from the hard work. And meet positive people. Don't meet negative people who say नहीं होगा नहीं होगा। अरे आपका नहीं होगा, हमारा हो जाएगा। I just need a 1 seat. No. Why to listen to all this crap? हो जाएगा। Okay? Bye.